First panel. I'd like to call on stage Professors Shazia Fazli, Meenakshi Gupta, Sanghamitra Acharya. Please come on stage. The first panel, we will be discussing health indicators, what causes vulnerability. To one and all present here, I am privileged to moderate the panel discussion on health indicators, what causes the vulnerability. I would like to welcome you all to this session and hope this whole discussion would enlighten us as far as the aspects of women's health are concerned. So when we are talking about the gender diversity, as we all know, it refers to a wide range of gender-related identities and ways of expression. Gender inclusion means that everyone must be treated with respect, regardless of gender identity, and ensuring that systems and processes that treat all genders equally. While discussing the broad domain of the gender diversity and inclusion, we somewhere in the back of our mind have the notion of women's health also. WHO emphasizes that there must be adequate and efficient health services that are physically accessible and available to all without discrimination. Health services must be ethically and culturally appropriate for people from different backgrounds. Furthermore, these services must be scientifically sound with high quality. As soon as we start talking about availability, accessibility, affordability, and quality of health services, somewhere pops the picture of those women who are vulnerable due to their circumstances and are unable to reap the benefits of modern healthcare services. While magnitude of the vulnerable population is not clearly documented and understood, indicators such as extreme poverty show that vulnerable among women is pervasive. About for this in Indian society, women in low and middle income group often do not control resources and are culturally disadvantaged, which affects their health. When we are talking about the COVID-19 pandemic has challenged the already overburdened healthcare system and disrupted essential health services, which has further aggravated the vulnerability of women's health. So, to ponder over these issues at the stage among us, we have a versatile panel of eminent scholars. We have Ms. Meenakshi Gupta, co-founder of Gunj, and Professor Sangmitra Acharya from JNU. So, ma'am, without taking much time, let me begin with the panel discussion. So, my first question is to you, Madam Meenakshi, that what are the major factors those are related with the health vulnerability in women? Thank you, Professor. Namaskar and Jai Hind to everyone here. I think before I address the question here, let me just give a little bit of a background of Gunj, because that is coming from a very practitioner-driven, grounds up. We've heard about the NFHS data and we've heard about the larger picture. And I think my being here is because we came into the issue of working on women's health from a very, right from ground up, not having kind of chartered out for ourselves that we are going to work on women's health, but our journey to women's health was a very interesting one, emerging from the vulnerabilities that are mentioned here. So Gunj basically started about 23 years ago, and we were looking at this very, very basic issue of cloth. As when we say the तीन basic बुनियादी ज़रूरतें, roti, kapda, makan. So उसमें kapda we felt was missing. You
did not find it mentioned anywhere on the development agenda of any organization. और वो मसला आज भी बना हुआ है, वो आज भी कपड़ा एक जरूरत के तौर पे उसका जिक्र कहीं आप पाएंगे नहीं। तो जब हम लोगों ने 23 साल पहले उस विषय पे बात करनी शुरू करी, we were trying to understand कि कपड़ा एक इंसान के जीवन में क्या रोल प्ले करता है, क्या ऐसा है जो मतलब खाली तन ढकने की बात है। तो तब हम लोगों ने बहुत सारी महिलाओं से और बहुत सारे लोगों से, आदमियों से, औरतों से, बच्चों से बात करनी शुरू करी पूरे देश में, और कुछ ऐसी कहानियां निकल के आई, कुछ ऐसे वाकया निकल के आए कि जिसमें कपड़े का एक महिला के जीवन में क्या रोल है उसका जिक्र एक हमारे बिल्कुल हमको चौंका दिया उस जिक्र ने। तो आगरा के पास एक बैंगल चूड़ियां बनाने की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिनमें हम बात कर रहे थे। तो वहां पे एक महिला ने जिक्र किया कि कैसे उसकी एक दोस्त थी वहां पे, और उन्होंने, और ये मैं बात कर रही हूँ आज से 23 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो उस टाइम पे जिक्र किया कि कैसे उनकी एक दोस्त की डेथ हो गई क्योंकि उन्होंने एक ब्लाउज का कपड़ा अपने मेंस्ट्रुएशन के लिए यूज किया जिसमें कि एक हुक था जो रस्ट उसमें जंग लगा हुआ था, और उससे उनकी टेटनस से मौत हो गई। और साउथ में गए तो साउथ में किसी ने जिक्र किया कि कैसे वो कपड़ा उन्होंने बाहर, जो मेंस्ट्रुएशन के लिए वो यूज कर रही थी कपड़ा, वो बाहर सूखने के लिए ऐसे रखा हुआ था, तो वो उसमें एक सेंटिपिड घुसा और वो उनके शरीर में वो उन्होंने यूज किया और उनका देहांत हुआ। तो वो कहानियां जो थी उसने हमको बताया कि, क्योंकि मैं और अंशु जो है दो जो जिन्होंने कल आप में से कुछ लोग मिले भी होंगे, तो हम लोग दोनों शहरी परिप्रेक्ष्य से आते हैं, बैकग्राउंड से आते हैं, वहीं दिल्ली में पली बड़ी हूं मैं, तो हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था, ऐसा देखा नहीं था। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज, बहुत सारा इवन इंडिकेटर्स जो है वो शायद उसमें इंक्लूडेड ही नहीं है, क्योंकि वो जो सवाल पूछे जाने हैं या पूछे जाने चाहिए वो उनको इंक्लूड ही नहीं कर रहा, वो उनकी रियलिटी से जुड़ ही नहीं रहा कि जिनकी हेल्थ के बारे में बात करने की जरूरत है। तो वो कहानियों ने हमें बताया कि एक कपड़ा जो है एक औरत के लिए एक अलग ही मायने रखता है। उसके शरीर को ढकने के लिए तो है, उसकी डिग्निटी को बचाने के लिए तो है, मगर उसको हर महीने, महीने दर महीने एक कपड़े की कमी, एक पीस ऑफ कपड़ा, उसकी कमी उसको इस क्राइसिस तक लेके जाती है कि उसके लिए वो मेंस्ट्रुएशन जो है एक मंथली डिजास्टर के रूप में तब्दील हो जाता है। तो उस जरूरत को समझने का काम जो है वहां से शुरू हुआ। वहां से हम लोगों ने उस इशू पे काम करने की कोशिश करी, और हमने उसको इस तरह से देखा कि हमने कहा कि शहरों में बहुत सारा कपड़ा जो है वो ऐसे ही या तो लैंडफिल में चला जाता है या किसी के घरों में अलमारियों में बंद है। तो गूंज का काम जो है एक बड़े स्तर पे शुरू हुआ, लगभग आज 27 राज्यों में है, और ये हुआ कि हम शहरों से बहुत सारा कपड़ा इकट्ठा करें। उसमें से बहुत सारा कपड़ा जो है शायद पहनने के योग्य ना हो, मगर उस कपड़े में कॉटन कपड़ा निकालें जो एब्जॉर्ब कर सकता है, सोख सकता है। उससे हम लोगों ने पैड बनाने शुरू किए, जो माई पैड के नाम से हम लाखों की तादाद में बना रहे हैं और शहरों में, गाँव में महिलाओं तक पहुंचा रहे हैं। इट गोज थ्रू अ वेरी डिटेल्ड प्रोसेस कि उसको धोया जाता है, धूप में सुखाया जाता है, आयरन के वो सारा मॉइस्चर निकाला, तो वो सारा प्रोसेस के थ्रू गुजर के वहां तक पहुंचता है। बट जब हम लोगों ने कपड़े पे ये काम करना शुरू किया, हमने सोचा कि अच्छा शायद कपड़े की जरूरत है तो हम वहां पहुंचाते हैं। बट जब कपड़े से जोड़ने की कोशिश की तब हमने और कहानियां निकल के आनी शुरू हुई, और वो कहानियां लोगों, महिला की अपने परिप्रेक्ष्य में, अपने गांव में, अपनी कम्युनिटी में, अपने परिवार में एक बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स है, जिसे कहते हैं ना, एक मसला निकल के आया कि कैसे उसको पानी की कमी है जो मेंस्ट्रुएशन से जुड़ जाती है, एक प्राइवेट स्पेस का जहां वो नहा भी सके उसकी कमी होना, उसको मेंस्ट्रुएशन का, उसकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ से जुड़ जाती है, उसका अपनी मतलब मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात भी कर पाना वो उसकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ से जुड़ जाता है। उसके जब आप क्योंकि अभी बात जिक्र हुआ कि इन्फेंट मोर्टालिटी की बात होती है, एनएफएचएस में आप उसको कैप्चर करते हैं उस डेटा को,
बट रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो पूरा इतना बड़ा काम है इस देश में, उसमें मेंस्ट्रुअल हेल्थ का जिक्र ना होना, मतलब आप यकीन जानिए बहुत सारे आशा वर्कर्स, बहुत सारे हेल्थ पीएचसीज में वो जाते हैं और प्रेग्नेंट महिलाओं से उन्हीं गांव में जाते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं, उनको सारी दवाइयाँ, सारी अवेयरनेस देते हैं। तो अगर मेंस्ट्रुएशन के बारे में, एक महिला का मेंस्ट्रुएशन का क्या हालचाल है, उसके बारे में कोई नहीं बात करता। तो जो चीज इंडिकेटर्स में ही नहीं आ रही, वो कहाँ से उसके ऊपर कोई एड्रेसल होगा, कहाँ से उसकी कोई मतलब कोई भी पॉलिसी इशू निकल के आएगा। तो हमें ये समझ में आया कि ये सब चीजें हैं, जैसे जो अभी आपने भी जिक्र किया कि एक्सेस का इशू है, बहुत बड़ा इशू है। आप शहर में जितनी आसानी से पैड जाके खरीद सकते हैं, गांव में एक महिला के पास पहले तो मार्केट ही नहीं है, और अगर उसको भेजना भी है तो अपने आदमी को या घर में किसी को कहना है कि तुम मार्केट जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है वहां से लेके आना है, तो किसी को बोलना पड़ेगा उसको। दूसरा, एक अफोर्डेबिलिटी का इशू तो है ही, वो तो एक बड़ा इशू है कि जो एक महिला की इकोनॉमिक फ्रीडम से या उसकी ताकत, इकोनॉमिक ताकत क्या है, उससे जुड़ता है। पर इन सबसे बड़ा इशू जो हमको दिखाई दिया जब हम इसको पिछले 23 सालों में इस पे काम करते रहे, तो इन सब के ऊपर एक इशू दिखाई दिया कि एक महिला का अपनी मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात ही ना कर पाना। तो मुझे लगता है कि जो बड़ा विषय है, एक सोसाइटल लेवल पे अगर विषय है, तो जिस विषय को, जैसे मेंस्ट्रुएशन के बारे में बहुत फिल्में बनी, बहुत ऑस्कर विनिंग वो हुआ और बहुत सारी चर्चाएं हुई, बट क्या हमने इस देश में जाके महिलाओं से पूछा भी कि भाई आपके मेंस्ट्रुएशन से जुड़े हुए मसले क्या क्या हैं? हमने एक प्रोडक्ट को एक उसका सेंटर माना। मेंस्ट्रुएशन में आपको एक मतलब अगर आप समझे तो शायद हेल्थ को एक बड़ा तालाब समझे, और मेंस्ट्रुएशन उसकी एक छोटी सी एक चीज है जो बहुत बड़े लेवल पे जुड़ती है एक महिला के जीवन से, उसकी हेल्थ से। तो अगर हम उस सुई से समझने की कोशिश करें कि भाई कहाँ कहाँ वल्नरेबिलिटीज पैदा हुई हैं या हैं, और कहाँ कहाँ इंडिकेटर्स हम शायद मिस कर गए वो, तो एक महिला की हेल्थ का लार्जर हेल्थ सिस्टम में या मेंस्ट्रुअल हेल्थ का लार्जर हेल्थ सिस्टम में ना इंडिकेट होना, या एक पीएचसी में या बड़े हॉस्पिटल में उसकी मेंस्ट्रुएशन पे कोई पैड ना होना, आप कहीं जाएं किसी पीएचसी में कहीं कोई पैड नहीं है, या डिजास्टर्स में, आई एम ट्राइंग टू टच अपॉन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वेयर मेंस्ट्रुएशन बॉदर्स अ वुमन एंड वेयर इट्स नॉट टेकन अप। डिजास्टर्स में एक रिलीफ किट में एक पैड का ना होना, या अभी जब कोविड में महिलाएं, जब बहुत सारे लोग जो माइग्रेट कर रहे थे वापस जब चल के जा रहे थे, उसमें हर एक मेंस्ट्रुएटिंग महिला जो थी वो भी चल रही थी, ना कहीं टॉयलेट था, ना कहीं प्राइवेट स्पेस थी। मुझे बीड्स में हमारे जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करते हैं, उनसे ऐसी इतनी भयावह कहानियां बोले कि वो जैसे मुंबई से और वापस चल के लोग बाग आ रहे थे, बीड़ जो माइग्रेंट वर्कर्स गए थे वो वापस आ रहे थे, उसमें कई महिलाएं थी, और बतानी बीड़ के गांव में वो महिलाएं जब वापस पहुंचती है, वो काफी चली हैं, कुछ जगह पे उनको ट्रैक्टर मिले जिसमें उनको बैठना था और कई किलोमीटर तक उनको चलना था, मतलब उस पर जाना था। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ट्रैक्टर पे कभी चढ़े हैं, इट्स द मोस्ट अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस। और आप मेंस्ट्रुएट कर रही हैं, कहीं 2-3 घंटे के लिए अगर रुके, कहीं भी रुक जाएंगे आदमी, तो आप नहीं कह सकते कि किसी आदमी को, अनजान लोग हैं, आप नहीं कह सकते किसी आदमी को कि कैसे मुझे कहीं रुकना है, चेंज करना है। तो वो आप कहीं झाड़ी में कहीं पे गए, और फिर वो बताते हैं वो जब वो वापस पहुंची, जब महिलाएं, उनकी हालत ऐसी थी कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, उनकी जांघें, उनका शरीर इतना छिल चुका था कि उनका बात करना भी, उनको कई मतलब दिनों तक उनको बैठने की भी हालत में नहीं थी। मसले महिलाओं की हेल्थ के, आई थिंक उसकी कई परतें खुलना अभी बाकी है, क्योंकि महिलाएं अपनी बात को, अपनी हेल्थ की बात को कह भी नहीं पा रही हैं पूरी तरह से। ऐसा महसूस होता है जब हम गांव में
हम क्या करते हैं, हम बहुत हजारों गांव में जाके महिलाओं के साथ चुप्पी तोड़ो बैठक करते हैं, ब्रेक द साइलेंस, क्योंकि अपनी हेल्थ को आगे रखना, उसको समझना, उस पे भी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को समझना और आगे रखना, ये बहुत परत दर परत वाला विषय है। और तब हम समझते हैं कि अच्छा, आप किसी गांव में किसी महिला को पानी का विषय है, किसी महिला को किसी गांव में प्राइवेट स्पेस का विषय है, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड है, वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरह से उभर के आ रहा है। तो इस पूरे विषय के पीछे एक बड़ा विषय है कि एक महिला की डिग्निटी, एक महिला का सम्मान, एक महिला की हेल्थ और वेलबींग का मसला, वो आपस में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, ऑफ कोर्स उसका सोशल एस्पेक्ट है, कल्चरल एस्पेक्ट है, बट एक सम्मान का विषय जहां जुड़ता है, एक महिला को 5 दिन तक, 12 साल की उम्र से जब महिलाएं मेंस्ट्रुएट करती हैं, बच्चियां मेंस्ट्रुएशन शुरू करती है, और 50 साल की उम्र तक जब तक मेंस्ट्रुएशन चलता है, हर महीने दर महीने ये सारी तकलीफें झेलती हैं महिलाएं, और बात नहीं कर सकती उसके बारे में। तो आप सोचिए कि अगर मैं हेल्थ इंडिकेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, या एक सोशल, एक ह्यूमन राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचूं, तो एक महिला का अपने शरीर के बारे में क्या सोच बनती होगी, एक महिला की अपने बॉडी कॉन्फिडेंस या अपने हेल्थ सीकिंग बिहेवियर के बारे में क्या सोच पैदा होती होगी। इन सब एस्पेक्ट्स पे कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये अभी इंडिकेटर्स में कहीं नहीं आ रहा है। तो मुझे सिर्फ कुल मिला के ये कहना है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद मैपिंग से बाहर हैं अभी महिलाओं की हेल्थ के बारे में। आई स्टॉप हियर। Okay, thank you so much, ma'am, for your information, which is very insightful and thorough understanding of the field. आपने जिन जिन बातों के बारे में बताया, really these are eye openings for us, क्योंकि how cloth is important in the population which is marginalized, and how they are using that clothes, and we don't think about this. हम लोग सोचते ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है, या किसी की जिंदगी में क्लॉथ की ये यहाँ तक की भी इम्पोर्टेंस नहीं हो सकती है कि मतलब उसको वो क्लॉथ उसके लिए उसकी जिंदगी से कहीं जाके जुड़ जाए। बहुत ही इंसाइटफुल और बहुत ही आई ओपनिंग डिस्कशन रहा आपका। और आपने जिस तरह बताया कि कहीं हम लोगों ने हेल्थ में मेनिस्ट्रेशन को तो कहीं जगह ही नहीं दी है, ये फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वी ऑल टेक फॉर ग्रांटेड दिस कि मेंस्ट्रुएशन तो होता ही है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द विमेन, दिस इज द पार्ट ऑफ द गर्ल्स लाइफ, ये तो होगा। जब वो 12 ईयर की हो जाएगी तो वो तो उसकी जिंदगी में शुरू ही हो जाएगा, इसकी तो कोई अलग से इसको एड्रेस करने की जरूरत नहीं है। बट आफ्टर दिस डिस्कशन really we realize that how menstruation is also important in the life of every woman. अगर हम सच में सोचें इसके ऊपर तो हर इंसान की जिंदगी में बहुत रिलेटेड है। बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाते हैं, बहुत सारी बार हम सही में मूव नहीं कर पाते इजीली फ्रीली यहाँ वहाँ, लेकिन हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और ये मान लेते हैं कि ये होता है, इसलिए हम कभी उन पर इतना सोचते नहीं। और दूसरी बात जो आपने कहा कि स्टिग्मा इज ऑल्सो अटैच विद द मेंस्ट्रुएशन, कि अगर हो गया तो हम किसी से कह भी नहीं सकते, किसी से बता भी नहीं सकते, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जो हमें एड्रेस करना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने माइग्रेंट वर्कर्स से रिगार्डिंग कही, रियली इट वाज शॉकिंग कि जब एक जगह से दूसरी जगह लोग जा रहे हैं तो वो अपने पर्सनल हाइजीन को तो छोड़ ही दीजिए, जो पर्सनल नेसेसिटीज हैं उनको भी एड्रेस नहीं कर पा रहे थे। हाइजीन तो बहुत दूर की बात है, जिस हेल्थ और हाइजीन बड़े बड़े जार्गन्स यूज करते हैं, दीज आर वेरी फार फ्रॉम दिस पॉइंट। और रेस्पेक्ट, यस, रेस्पेक्ट शुड बी देयर। हर विमेन का राइट है कि रेस्पेक्टफुली उसको ट्रीट किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं किया जाता, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और ये एक ऐसा इशू है जिसको हमको जरूर एड्रेस करना चाहिए। और एक्चुअली मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन डजंट नो अबाउट
कि how they can use their right. उनको पता ही नहीं है कि हमारे क्या right है और how can we use this. So these are the major problems those you have addressed. Thank you so much, ma'am. My next question to you, Professor